in Human Resource and a PG diploma in Food Safety and Quality Management. We also have with us Mr. Ganesh Chandra Khanwal. He is the Deputy Commissioner, Food and Drug Department, Uttarakhand. A science graduate with postgraduate degree in law, he has over 25 years of experience in food safety regulations. Awarded by the Chief Minister of Uttarakhand in 2016 and the winner of 2021 Ideathon, he has served in the Food Safety Appellate Tribunal and has been an impaneled faculty with FSSAI since 2014. Thank you all the panelists for joining us today. We are really grateful to have you. As we begin today's webinar, I request all the participants to post their questions in the chat box, which will be taken up in the Q&A session at the end of the webinar. Also, it is our request to keep your questions confined to today's theme. I now invite Dr. Iram Rao to lead today's session. Over to you, ma'am. Thank you so much, Purnima. And I must begin by welcoming each participant over here. And foremost, I'd like to first thank Food Safety Standards Authority of India for giving me this particular opportunity. And also this Eat Right India initiative, which was actually launched way back in 2020 to actually come back and give its actual potential. It's also very important that each one of us who's whether sitting here or not should make this particular movement as mission of our particular country. We understand why we're talking about this because today India, being the youngest nation in the world, also could perhaps be the most morbid nation, and God forbid that. If we do not take the actions today, tomorrow may not be as bright as we are envisaging. We know we can be the food basket of the world, and every effort is being made by the authorities as well as by the producers, the food business operators, to give the world quality food for all. But we need to understand that what we are eating, is it right for us? And that's precisely the Eat Right India flagship initiative of the Food Safety and Standards Authority of India envisages. It wants to ensure that whatever you and I eat is safe, it is healthy, and most significantly, sustainable. And that is what we have understood over here in today's program, that eating right forever. And that is where the word sustainability comes in. Why are we suddenly concerned about this? As you understand that public health concerns are looming large. Earlier we used to talk about the age-old population falling sick or becoming diabetic or obese. But unfortunately and very sadly today we find that a lot of school-going children are suffering from these morbidities, which were earlier confined only to those who were about 40 plus. And that's where we are concerned about, to ask and to take everybody together that where are we really going wrong. Now that is why today, as Purnima has introduced, we have a very, very eminent panel over here, almost luminaries in their field, and have done some very excellent work in terms of establishing best practices. There are a number of success stories which we've heard from all these three particular states, which is like and union territories. So I'd like to first go right in and talk about, if I look at Mr. Sukhwinder Singh from Chandigarh, I think he's got the most allocates if anybody can think of it for his age. So I'd like to first come to you and understand that this particular initiative of the Eat Right India movement, how do you think we can go beyond a particular just eating right? How can you bring into this interface nutrition, connecting the food with the health of the inmates, along with not neglecting the environment and also in the end the economy of the country? So I would want to understand that how have you kind of built in these three pillars, as we have talked about, eating safe, which means that you make sure that every person gets food which is not just safe but also hygienically prepared, and then only it is possible.
They are nudged and they are actually made aware of the fact of healthy eating practices, which means have a very, very balanced diet. They're also nutritionally made very aware. So there are a lot of initiatives, as you know, that Food Safety Authority of India has been kind of promoting. And what I call this is actually a 360 degree of course. Leave no one behind. Make food safety everybody's business. Eating right, everybody's business in life, so that we can lead a very, very healthy life. And finally, whatever is your mission and vision, are you able to also make sure that it is done sustainably, so that we are not actually indulging in what is called as monostaples, because you find that Indian diets or the Indian thali per se ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट रिच होती है। आप उसमें ज्यादा मात्रा देखते हैं राइस की और चपाती की, और बहुत कम मात्रा देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। ये क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? हम सब जानते हैं। आपको सिर्फ रोजमर्रा सब्जी और उसके साथ साथ जो मौसम के फल हैं वो आपको इनकॉर्पोरेट करना है। हम हमेशा से दालें और लेग्यूम्स खाते हुए आ रहे हैं। तो आप किस तरह से अपना ये जो एक मिशन है, which you have been doing with a missionary zeal, have been actually able to align with the United Nations Sustainable Development Goals. Over to you, please. Absolutely. Good morning, and really, I'm thankful to the FSSAI for inviting me on this wonderful platform. And secondly, I congratulate FSSAI for starting such a wonderful initiative, which is really valuable for everybody, not only to the people, but also for the safety of our environment and country. And it is a wonderful, and as Madam Dr. Era told, that there are so many issues. There are the issues of the NCDs. There are major issues are there, and people are suffering a lot as we are moving towards the processed food and all that. So there are so many issues. Even if we talk about, if we see that even the junk food now it is very high in market, and people are moving towards that, and they are going easy. Yeah, they are basically approaching towards the easy food, and they are approaching, and they are taking this junk food and all that. That all these things are not only harmful to the human health, but they are also making a major, you can say, hazardous for our environment also. And as the mandate of the FSSAI is that eat safe, eat healthy, and eat sustainable. So basically, we are also from the authorities, and we are totally working on this particular theme only, that we should aware public about the eat safe, eat healthy, and eat sustainable. So there are lot many initiative launched by the FSSAI in the recent past, that Eat Right campus initiative, Eat Right school initiative, then Eat Right stations, clean street food hub. There are so many initiatives. And if you see, we have adopted all those initiatives, and we have worked very hard in to bring up these initiative in our city, and other in my colleagues also. They are also doing the same practice in their states. And under this initiative, if you see, we are generating awareness, we are providing trainings to the whosoever are there, workers are there, the school children are there, Anganwadi workers are there, midday meal workers are there. So we are providing trainings to them. We are providing training how they can make the food healthy, safe, and sustainable. So if we, as Dr. You told that particularly about the sustainability, what's there. So basically what we are doing, we are educating people. Now there are so many things. One is the not to waste the food which is lying surplus over there. So they should accommodate that food in some way that can be useful for others, that can be useful for the needy people. So on this we are working very hard over here. We introduce this safe food, share food practice in our if I talk about Chandigarh, then we started this initiative in this regarding the safe food, share food practice. We introduced one of the organization, that is a Robin Hood Army. So we connected with that Robin Hood Army, whatever, and we called all the hoteliers, restaurant peoples,
we had a meeting with them. Then whatever food they lying with them surplus, so they should contact these organizations like Robin Hood Army people, and they should give their product to these people so that they can serve it to the needy people. And this initiative we have taken in the slum areas also. Whatever food are found, whichever is given to these Robin Hood Army Association from the hotel industry and restaurant industry, we distributed these food articles to the needy people in the slum areas where people used to get only. If you see what we have observed that in slum areas, there are a few slum areas in Chandigarh, and we observe that people over there, the parents are only preparing a one meal in the morning with dal and one only rice, and they are serving the whole day to their children. In some cases, we have observed that people, those who are not having any, there are financial issues are there. They are just not giving their children the day meal. They are just telling them just go and sleep, and even the children are not getting the meal properly. So what we did, we adopted 2-3 such slum areas, and in association with this Robin Hood Army, we started distributing the meal to these organizations with the help of these restaurant and hotel associations. So this is the one way we are doing in the case of the sustainability. Secondly, what we did. We started an initiative in Chandigarh. We promoted millet in a very well manner. We we introduced this in the schools of UT of Chandigarh. Midday meal. So what we did, we associated the education department and Chandigarh Institute of Hotel Management, and in association with that, we started this Chandigarh School Millet Mission. Under that mission, we organize various workshops at different clusters where the cluster of schools. सुखविंदर जी, मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी और ये पूछने के लिए, क्या वो आपने जो मिड डे मील्स मिलेट बेस्ड स्टार्ट किए, were they accepted by the children? Absolutely, they are accepted by the children. Even if you see, अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो schools के अंदर एक competition शुरू हो गया बच्चों में आपस में. Wonderful. So now what is happening over there, in a month, the teachers are organizing a competition among the childrens. So they are bringing the food prepared based on the millets from their home. Right. Even sustainability का बहुत अच्छा आपने एक उदाहरण बताया है, तो हम हमारे जितने भी listeners हैं, मैं उनको यहाँ पे ये चीज बताना चाहूंगी कि सुखविंदर जी is doing an excellent work. इन्होंने already ये चीजें करके देख ली हैं, जो कि हम दूसरे states में apply कर सकते हैं. लेकिन एक जो चीज मैं अपने सारे सुनने वालों से कहना चाहूंगी, क्या हम भी इसमें भागीदारी ले सकते हैं? क्या हम सब एक रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन ऑफ फूड कर सकते हैं? क्या मैं अपनी थाली में उतना ही परोस सकती हूँ जितना मुझे खाना है? तो टू बिगिन विद, हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, नो फूड शुड गो वेस्टेड, राइट? और क्या हम एक और चीज कर सकते हैं, हर बंदा एक बंदे को खाना खिला सकता है? तो ये सारी चीज करने से आप भी हमारे जो ईट राइट इंडिया मूवमेंट सरकार का है, जिसमें हम बोल रहे हैं कि सस्टेनेबल होना चाहिए, उसमें आई एम श्योर नोबडी विल गो टू बेड विदाउट अ मील. एंड एज मिस्टर सुखविंदर पॉइंटेड आउट कि हमारे जो फूड्स हैं, फॉर व्हाटएवर रीजन, हम बैलेंस डाइट समझते हैं पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं. तो सुखविंदर जी, मैं आपको इस टाइम होल्ड करना चाहूंगी, एंड आई वुड वांट यू टू देन थिंक ऑफ वन बेस्ट प्रैक्टिस, जितनी भी आपने प्रैक्टिसेस की हैं, जो आप कह सकते हैं कि ये मेरा एक सेट गोल्डन बेंचमार्क है, और सारे स्टेट्स को और सारे यूटीज को मैं न्योता देना चाहता हूं कि मुझसे आओ और उसको मॉडल को अपना लो. So moving on, may I now request Mr. Ganesh Chandra, who's from the Uttarakhand, and also you know that Uttarakhand has been in the limelight for very very good practices. और ये मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूंगी कि कैसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि एक ईट राइट इंडिया मूवमेंट के अंदर हमने किया था. से नो टू प्लास्टिक्स, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड्स, नॉट जस्ट सिर्फ बच्चों के लिए बट वर्क प्लेस पे भी, हॉस्पिटल्स पे भी, सुखविंदर जी ने अभी बताया है रेलवे स्टेशन पे भी. तो मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि वो क्या इनिशिएटिव्स हैं जो आपने अपनाए हैं और आपके बहुत सक्सेसफुल हुए हैं. ओवर टू यू सर. हेलो.
So while this is getting, I think, fixed, can we move on to Mr. Chandan Pandey? सर वही कुछ क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो कि हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं, और this is aligned to the vision of the Eat Right India movement, and how would you want to add value to it? Over to you, sir. Yes, ma'am. Thank you for giving me this opportunity, and with the stalwarts of my country in food safety. This is the Eat Right India movement is much closer to my heart, and this is a great translation of SDG, Sustainable Development Goal of United Nations, in terms of food safety, in terms of food system, and this is also indicator of the future of our food and agri practices, and future of food safety. So unlike my other two panelists, I moved to district, and landscape of different districts are very different. Sometimes districts are richer in food business, sometimes lower, but people are not that much of their choices for food are limited due to the purchasing parity. So a different kind of things come to my challenges, but there are some success stories, and equally I सर am मैं आपसे विनती करना चाहूंगी, थोड़ा अगर आप हिंदी में भी बोलेंगे तो बहुत सारे हमारे जो सुनने वाले हैं बहुत अच्छी बात है। जी प्लीज। बहुत अच्छी बात मैम। अभी हाल में जिस चीज को आई कैन फील प्राउड, अभी हमारा ईट राइट कैंपस के ऊपर और ईट राइट स्टेशन के ऊपर अभी बिल्कुल सर्टिफिकेशन 2 महीने पहले पूरा हुआ है। मैं विजिट किया पुलिस लाइन को, और एसएसपी साहब से मैंने बात की कि पुलिस के लोग खाना खाते हैं, तो दे वर टॉकिंग ट्रेडिशनली हाउ आवर डिपार्टमेंट मेक्स रेड एंड ऑर्गेनाइज्ड रेड। देन मैंने उनको ये बात क्लियर किया कि रेड का क्या इम्पोर्टेंस है, और लोगों को पेनलाइज करने का क्या इम्पोर्टेंस है, और ईट राइट इंडिया किस तरह से, ईट राइट मूवमेंट किस तरीके से हम हजारों पुलिस वालों को भी अच्छा खाना दे सकता है। तो ही वॉज वेरी एंथुजियास्टिक, और पुलिस लाइन की जो मेस है वो दैट बिकम वंडरफुल बाय देयर इनिशिएटिव, और इतना सुंदर वहाँ पर व्यवस्था हुई है। एंड वन डे मिलेट्स आर बीइंग इन फोर्टिफिकेशन, मिलेट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, ब्रांडिंग की गई है, और मोर देन 1000 पुलिसमैन आर टेकिंग गुड फूड। एक दूसरी चीज जो अभी और अच्छे से एड्रेस किए जाने की जरूरत है वो स्ट्रीट फूड को लेकर के। इन सम वे और अदर मोर देन 90% पीपल, गोलगप्पा खाने के लिए कोई 5 स्टार होटल नहीं जाता है, ऑमलेट के लिए कोई होटल नहीं ढूंढता है, और विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, हॉस्पिटल गोअर्स हैं, ऑल आर डिपेंडेंट ऑन स्ट्रीट फूड। जो तीर्थयात्री हैं, पिलग्रिमेज, वो स्ट्रीट फूड पर हैं, एंड दिस इज वेरी मच क्लोजर टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू एड्रेस पॉवर्टी, हंगर एंड हेल्थ। और एक देर इज एन एक्ट प्री एग्जिस्टिंग by 2014, पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रीट फूड एक्ट। उसको जब अभी ईट राइट इनिशिएटिव नहीं शुरू हुआ था तो हमने मथुरा में, वृंदावन में, एंड हेमा मालिनी जी इनॉग्रेटेड दैट स्ट्रीट फूड। वो आज नहीं है वहाँ पर, जहाँ पर वो बना था वहाँ नहीं है, लेकिन दैट someday I wish to cry over the failure story of that, कि वो कितना उन लोगों के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो गुंडा टैक्स देते थे, जो सुबह में लोन लेते थे, शाम को चुकाते थे, उनका 3 गुना से लेके 5 गुना तक इनकम बढ़ गया। हर प्रकार का तो यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी that fantastic vision,
अब आप ये बताइए कि क्या हमारे जो सुनने वाले या हमारे जो कंज्यूमर्स हैं एट लार्ज, आपका ये जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्लीन स्ट्रीट फूड हब्स, या जो आपने एग्जीक्यूट किया है, उसमें आप चाहते हैं कि जो कंज्यूमर है उनकी भी भागीदारी हो सकती है, और कैसे हो सकती है? मैम, कंज्यूमर तो ऑलरेडी हमारे स्ट्रीट वेंडिंग पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। ट्रांसपेरेंट किचन है, सामने ही खाना बनता है, बहुत सारे ऑफिस गोर्स के लिए ये सारी पर चीजें ईट उपलब्ध राइट होती हैं। मूवमेंट में तो कुछ हाइजीन प्रैक्टिसेस को मध्य से रखते हुए या कुछ उसमें मैम जो स्ट्रीट वेंडिंग में होना चाहिए वो जो फंड मोबिलाइजेशन, किस तरीके से हम स्ट्रीट वेंडर्स को ट्रेनिंग देने के लिए और उनको एम्पावर करने के लिए, और ऑलरेडी इन मेनी एक्ट एंड रेगुलेशन देयर आर थिंग्स आर एग्जिस्टिंग, केवल पूल करने की जरूरत है। बट एक जो आम पूल नागरिक कहाँ पे भागीदारी दिखा सकता है? फॉर इंस्टेंस, जब मैं गोलगप्पा खाने जाती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि उस बंदे ने साफ सुथरा है कि नहीं। ये हर आदमी चाहता है कि हम साफ सुथरा खाना खाएं, राइट? पर मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि जब मैंने गोलगप्पा खा लिया तो मैं जहां खड़ी हूँ वहीं फेंक दूं, या हम थोड़ा सा एक अपने आप को भी सुधार सकते हैं। सामने ही कहीं वो डस्टबिन जरूर रखता है बंदा, क्या हम उसको जाके डस्टबिन में डाल सकते हैं? हम भी ये चीज अगर करेंगे और हम सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करेंगे, तो ये जो गठबंधन है, आई थिंक ये जो एक आपकी भागीदारी का मूवमेंट है, ये जो एक कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, food safety is everybody's business. We can't just point this one finger towards you, that you are the food safety commissioner, you are the food safety officer, you are the DO, and you have to do it. We all have to make this as a participatory movement. So that's what we are trying to say, that Eat Right India has been existing for so many years. अब हम उसको किस तरह से उस हिसाब से पुश करें that ये सबका एक भागीदारी मूवमेंट हो जाए, और हम सब भी इसमें डिमांड करें। उस बंदे से खाना नहीं लो जो गंदा बेच रहा है, ऑटोमेटिकली वो अपने आप में सुधार लेके आएगा। So I'm very happy जो आप कर रहे हैं, and a lot of learning from here. Now let's move on to Mr. Ganesh Chandra. I think you are here, right? Yes. So are you able to? Yes, sir. Can you hear Yes, me? yes, ma'am. I'm there. राइट। सो जो मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था, मैं वही दोहराना चाह रही हूँ कि आपकी क्या ऐसी कामयाबियां हैं, क्या आपकी सक्सेस स्टोरीज हैं। एंड मुझे मालूम है उत्तराखंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है हमारी कंट्री का, जहाँ पे फुटफॉल बहुत ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग फॉर द पिलग्रिमेजेस। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत मल्टीफोल्ड ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द अदर दिस थिंग, और एक्सपेक्टेशंस की भी कंज्यूमर्स के बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन who's going to visit there, टूरिस्ट भी होते हैं, पिलग्रिम्स भी होते हैं। तो मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि आपने ऐसा क्या किया है जो कि आप you're very proud of it, and that is what you want to share with all of us. Over to you. Thank you, ma'am. Thanks for giving me chance. And first of all, I just want to share that the main topic is related to the Eat Right India movement. And as far as the Eat Right India movement, which is started in 2018, so it's almost 7 years. उसमें से अगर हम कोविड के 2 साल को अगर हटाते हैं तो 5 years डाउन द लाइन ये जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया, इसका जो मेन मोटिव है टू रिड्यूस द कंट्रीज डिजीज बर्डन। एंड यहाँ मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि बिफोर गोइंग टू द स्टेट से रिलेटेड जो हमने जो किया है उससे पहले, और जो हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए, कि जो 2024 का जो प्री बजट सर्वे का अगर हम डाटा की अगर हम बात करते हैं तो इट सेज कि ऑलमोस्ट इंडिया का 56.4% ऑफ इंडियाज प्रेजेंट हेल्थ बर्डन इज ड्यू टू द अनहेल्दी डाइट्स। और जितना अनहेल्दी डाइट्स के चलते एक तो ये प्रॉब्लम हमारे देश में बहुत बड़े लेवल पे है, और कि फूड बॉर्न डिजीज, इसके अलावा जो है फूड स्पॉइलेज इज वन अनदर थिंग जिस पे हमें वर्कआउट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड उसके साथ में एवरीबडी नोज दैट वी आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करना इन टर्म्स ऑफ द फूड, इट्स अ बिग चैलेंज। एंड उसी के साथ में जो है हम ये भी इंश्योर करें कि लोगों का जिस तरह से लाइफस्टाइल है आज, and sedentic lifestyle is the one thing, and due to the growth of the internet and due to the another so many other issues, physical activity कम होता जा रहा है। एंड उसके साथ में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया है, दैट इज रिलेटेड विद द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। एंड जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे हम डायबिटीज़ की बात करें, चाहे हार्ट डिजीज़ की बात करें, they have some commercial drivers, and the commercial drivers are the ultra processed food, lots of sugar, high fat sugar diets,
ये सारी चीजें हमारी डाइट का आज पार्ट होता जा रहा है। और यंग जनरेशन जो यूथ है, यूथ का जो फूड हैबिट्स है वो चेंज हो रही है। एंड यू नो कि फूड सेफ्टी इज अ वेरी डायनेमिक फील्ड, इट्स नॉट ए स्टैटिक। तो चेंजिंग फूड हैबिट्स के साथ में, लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ में, पॉपुलेशन एक उसके साथ में और चीज ऐड हो जाता है, इट लीड्स टू द हैविंग अ लॉट ऑफ डिजीज बर्डन। सो टू मिनिमाइज दिस थिंग, अभी जो है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ईट राइट इंडिया मूवमेंट का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एंड अगर हम इसके जितनी भी चीज़ें हैं, जो इसके जो कंपोनेंट हैं, ईट सेफ, ईट हेल्दी एंड ईट सस्टेनेबल, इसको अगर फोकस करके हम चलते हैं तो हम न केवल जो है लोगों को हेल्दी डाइट्स की तरफ डाइवर्ट करने में सक्सेसफुल होंगे, साथ में हम लोगों का सोशल एंड बिहेवियरल चेंजेस करवा करके वो भी उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेगा उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। तो अपने स्टेट के अंदर यू नो कि उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है, वी हैविंग अ लॉट्स ऑफ टूरिस्ट, सो मेनी पिलग्रिमेज। तो जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है हमारी स्टेट की, इट्स ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स मोर देन आवर एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। साल भर में जो है करीबन 7-8 करोड़ लोग आते हैं। उत्तराखंड की प्रेजेंट में पॉपुलेशन 1 करोड़ 20 लाख के करीबन अंदाजन, ये अभी तक की जो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से है। तो पर डे का अगर हम डाटा की बात करें तो पर डे जो है ऑलमोस्ट मोर देन 2 लाख पीपल आर विजिटिंग इन आवर स्टेट। एंड 2 लाख लोगों का जो एक्स्ट्रा बर्डन है, उनको न केवल सेफ फूड प्रोवाइड करना, एंड फूड के साथ में एक और चीज़ है जो मुझे जो लगता है बड़ा रिलेवेंट है जिसके बारे में बात करना, दैट इज़ द जो वेस्टेज वाला पार्ट है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक जिस हिसाब से जो है बहुत बड़ा एक चैलेंज होता जा रहा है, खासतौर से उन स्टेट्स के लिए जहाँ पे बाहर से टूरिस्ट आते हैं, दे हैविंग सम नेचुरल सीनरीज जो केवल जिसको देखने के लिए लोग आते हैं, तो उन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना, उनको प्रोटेक्ट करके रखना। एंड ये सब होगा लोगों के साथ में जो है जब हम इंट्रैक्शन करें, उनके अंदर सोशल बिहेवियर चेंजेस आएंगे, तो तब जा करके इन हैबिट्स में चेंजेस आएंगे। हमने स्टेट के अंदर जो कई सारे इनिशिएटिव्स को हम लोग कर रहे हैं, बट रिसेंटली जो चीज़ अभी किया है मैं वो शेयर करना चाहूँगा। वी हैव स्टार्टेड, एज यू नो कि अभी हमारी स्टेट के अंदर 4 धाम यात्रा इज गोइंग ऑन, एंड उसके साथ में उसी बीच में मिड में जो है हेमकुंड साहिब की यात्रा भी होती है, और कांवड़ भी अभी जो है एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जो स्टेट के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इतने सारे लोगों के लिए कैसे हम सेफ फूड प्रोवाइड करें और उसके साथ में सस्टेनेबल तरीके से उस चीज़ों को हैंडल करें, तो वी हैव स्टार्टेड वन इनिशिएटिव दैट इज रिलेटेड विद द ग्रीन इनिशिएटिव। एंड अंडर दिस इनिशिएटिव मोर देन 10 वर्कशॉप्स आर कंडक्टेड इन द ऑल द हिली डिस्ट्रिक्ट्स, खासतौर से जो 4 धाम यात्रा रूट्स पे हैं, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, इसके अलावा अदर प्लेसेस पे। एंड एफबीओस को सेंसिटाइज किया गया ऑन द 3 मेजर टॉपिक्स, दैट इज 1 is related with the used cooking oil, in the discarding of the used cooking oil in a sustainable way. Second, आप इसके बारे में थोड़ा सा एक्सपैंड करके बताइए, so yes, that people are able to understand what is RUCO, give us what do you do there, what has to be done, and also explain कि consumers का कैसे रोल होएगा उसके अंदर समझने के लिए। that is the one, RUCO is the one thing. Second is the food wastage, जैसे सुखविंदर जी ने जिसके बारे में बात करी, and third is related with the minimizing the use of the single use plastic. So अभी अगर हम देखें, अगर अब कंट्री के ओवरऑल अगर हम बात करें या हम स्टेट की भी बात करें, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को टू गिव देम द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज अनदर वन इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हम आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। अगर हम जो है पूरी सभी चीज़ों को पॉल्यूट करते जाएंगे, और इनडायरेक्टली अगर हम प्लास्टिक अगर बढ़ता है तो प्लास्टिक वो फूड चेन का हिस्सा बनता है। अगर हम रूको की अगर हम बात करें, यूज कुकिंग ऑयल को अगर जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से अगर से डिस्कार्ड नहीं किया जाता है, देन इट गोज टू द सॉइल एंड इट कम बैक अगेन इनटू द फूड चेन, तो ये हमारी हेल्थ को अगेन इम्पैक्ट करेगा। एंड यू नो कि जब हम वन हेल्थ की बात कर रहे हैं, वेयर एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ आर इंटरकनेक्टेड, एंड उसके साथ में इन्वायरमेंट को भी हमें जो है प्रोटेक्ट करके रखना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको भी, इन तीनों चीज़ों को करें। तो रूको को लेकर के जो रिपर्पज ऑफ यूज कुकिंग ऑयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। ये इंश्योर करता है कि हम कैसे हम जो है जो तेल है, जो हमारा एडिबल ऑयल है, आफ्टर कुकिंग, आफ्टर फ्राइंग, आफ्टर प्रिपेयरिंग द फूड, तो इसको 3 बार से ज़्यादा उसे प्रयोग में नहीं लाना है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हेल्थ के लिए एक हजार्ड के रूप में आ जाता है। दैट इज नॉट ओनली हेल्थ हजार्ड, इट्स अगेन एनवायरमेंटल हजार्ड ऑल्सो। तो उसके अंदर कुछ ट्रांस फैट या उससे रिलेटेड कुछ और एलिमेंट्स डेवलप हो जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। ये बताइए कि एक ग्राहक होने के नाते से अगर मैं ऑयल का कलर देखूं, तो आप मुझे कुछ ऐसे टिप्स दे सकते हैं जो हमारे सुनने वाले हैं कि हम उस बंदे से खरीदे ही नहीं वो पूरी या कचौरी या समोसा
जिसका ऑयल का कलर कैसा होना चाहिए, परंतु वो क्योंकि उसने बहुत रीयूज किया है तो वो ऐसा हो गया है. So if you could just put some, inputs there. ओके, बेसिकली देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे कंज्यूमर्स का अवेयर होना. अगर हम जो है स्ट्रीट फूड प्रिफर करते हैं एंड लॉट्स ऑफ मतलब जो यंग जनरेशन है दे लाइक टू ईट भटूरा, समोसे या जितने भी जो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो तेल जिसमें जो है उसके फ्राइंग में या प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है. मतलब आप एक जनरल अजम्पशन है, आप कहीं भी जाके देखें कि वो करते क्या हैं, दे आर यूजिंग दिस ऑयल रिपीटेडली. और अगर वो कम होता है, उसकी जब क्वांटिटी कम होती चली जाती है, दे टॉप अप, वो उसी में टॉप अप कर देते हैं. और इसको अगर हम देखें तो वो एक कढ़ाई होती है जो बिल्कुल काली पड़ चुकी होती है, जिसमें इतना ज्यादा टाटर जमा हो चुका होता है उसमें. और वो भी एक तरह से देखिए कि इट्स वेरी वेरी डेंजरस कि हम उसमें बनी हुई चीजें खा रहे हैं. तो मैं यंग जनरेशन जो आज की है उस स्कूलों में खासतौर से यंग बच्चों को बहुत सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि आप कहीं पे भी अगर ऐसी और वो जगह पे ऐसे वेंडर से ले नहीं. मुझे लगता है सबसे चीज ये है, कढ़ाई का कलर जैसे आपने बताया वो देख लें, ऑयल का कलर देख लें. अब ऑयल का कलर आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए, जो विच शुड बी अ रेड फ्लैग दैट डू नॉट हैव इट इफ द कलर इज XYZ. ऑयल का अगर आप देखें तो उसके अंदर जो है वो डार्क हो चुका होता है, उसके अंदर जो है कुछ पार्टिकल्स उसके अंदर जाता है, थिक हो जाता है. जी, तो वो भी आपका एक मापदंड है देखने के लिए. और उसमें जो है आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखिए आप जो है किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि आप उसका कढ़ाई का ही कलर से उसको आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाउ सीरियस ही इज अबाउट दिस अपना जो है जो फ्राइंग को लेकर के. पर अगर कढ़ाई का कलर ही काला हुआ है, बहुत सारे लोग आयरन की काली कढ़ाई लेते हैं जो काली ही कलर की होती है. तो आई थिंक जो क्विक टेस्ट हम बता सकते हैं कंज्यूमर्स को कि आप तेल का विस्कोसिटी देख लीजिए, तेल का कलर देख लीजिए. तेल का कलर कैसा हो जाता है आप बताइए, जब उसके बाद बिल्कुल वो उपयोग के लायक नहीं है और अब उसको बायोडीजल के लिए भेज देना चाहिए. इट्स बिकम वेरी डार्क, जिसको जला हुआ तेल कहते हैं. आम तो बोलचाल ट्रांसपेरेंसी चली जाती है. फ्रेश तेल जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, गोल्डन येलो इन कलर होता है. जैसे वो थिक एंड विस्कस ट्रांसलूसेंट होने लगता है, तो दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे. वेरी गुड सर. एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा लिसनर्स को कि जो लोग अटेंड कर रहे हैं कि जब हमने इस पे लेकर के देहरादून में हमने इस पे जो है वी आर वर्किंग ऑन ए मॉडल दैट इज रिलेटेड विद द सर्कुलर इकोनॉमी. We are the 4 partners. One is the state FDA, second is the food business operator, third we having MOU with the CSIR IIP, Indian Institute of Petroleum. That is the one of the apex institute in this petroleum field, research field. And fourth is with FSSAI, means we are enrolling this program RUCO as a program we are running. So it's a four pillar partnership. We have first how we have make a chain. First we have sensitized the abuse. जितने भी hotels हो गए, restaurants हो गए, हलवाईज हो गए, street vendors हो गए, उनको जो है हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फॉस्टर की ट्रेनिंग्स हो, चाहे वो जो है आपके कोई वर्कशॉप्स हो, चाहे वो ईट राइट मेला हो, जो भी प्लेटफॉर्म हमको मिलता है हम उनको सेंसिटाइज करते हैं. और इवन हम जो है उनको वहाँ पे यूज कुकिंग ऑयल और उसके बाद उसका जो बायोडीजल है बना हुआ, वो दोनों को जो है डेमो करते हैं कि ये देखिए ये एक वेस्ट था, जिससे जो है हमने एक वेस्ट से जो है वेल्थ की बात कर रहे हैं, हम जो है एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि कैसे हम सस्टेनेबल तरीके से इस चीज को, इससे प्रोडक्ट बनाया जा सकता है. ये फेंकने लायक नहीं है, आप इसे अर्थ में मत फेंकिए, आप इसे नालियों में ड्रेन मत करिए. और खासतौर से जैसे अगर मसूरी जैसे टूरिस्ट प्लेस की बात करें कि मसूरी में जब मैं होटलियर्स के साथ पे मीटिंग कर रहा था, दे टोल्ड मी कि जो है उनका जो स्टाफ उसको जब वो ड्रेन करता है पाइप्स में, क्योंकि कि मसूरी इज अ वेरी कोल्ड प्लेस कि विंटर्स में इतना ज्यादा वहाँ ठंडा हो जाता है कि वो जो तेल वो जो डालते हैं ड्रेन्स में वो चोक कर देता है उसको. तो उनको हर साल जो है बहुत अच्छा अमाउंट जो है उसको क्लीनिंग कराने में, उसे खुलवाने में भी खर्च करना पड़ता है. अगर हमने एक सिस्टम बनाया कि एग्रीगेटर थ्रू एग्रीगेटर, वी हैविंग एन एग्रीगेटर एसडीसी फाउंडेशन, they are collecting the oil, edible oil, used cooking oil from the vendors, FBOs. They are paying the money and then they hand over this used cooking oil to the IIP and the other biodiesel manufacturer. So here I just want to quote कि ये जो मॉडल है it's known as the मतलब जो पहले CEO थे मिस्टर अरुण सिंघल सर, तो उन्होंने जो है बाकायदा इस चीज को आकर के तो इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट भी किया. he has given the name the दून मॉडल, लाइक एक मॉडल के रूप में जो है इसको जाना जाए, where 4 partners, department, aggregator, IIP and the FBOs were working together on a solution of the used cooking oil. तो
एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा क्या है कि जितने भी जो अगर हम जब मैं जो हमारे जो है रेगुलेटरी ऑफिशियल्स हैं जो इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, तो मैं उनसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि थ्रू द टीपीसी मीटर, वो टीपीसी मीटर के थ्रू जो है वो जा करके जो है जितने भी हलवाई हैं या जहाँ पे इस तरह का ऑयल यूज किया जाता है उसको चेक करें और उसको उनको बताएं कि ये डिस्कार्ड करना है, इसका सही तरीका क्या है। Link up them with the aggregator, and through the aggregator it will go to for the biodiesel manufacturing or other like for the soaps or other products which can be converted through the from the used cooking oil. That is the one practice, and जी I hope so कि इस इनिशिएटिव से जो है न केवल जो है उनके जो उनका जो स्टाफ है, मतलब यहाँ एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जब हमने हलवाइयों के साथ में बात करी या जो स्वीट शॉप्स वाले हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप करते क्या उस तेल का, जब जला हुआ तेल है, तो मोस्ट ऑफ देम टोल्ड मी कि ये पहले तो बचता नहीं है। मैंने कहा कैसे नहीं बचता है, तो कि वो या तो जो है उसमें जो है कुछ और चीज प्रिपेयर कर देते हैं। इवन उनका जो स्टाफ है, जो किचन का जो स्टाफ है, दे आर ईटिंग, मतलब वो अपना मील उससे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखिए ना, दैट इज द लैक ऑफ अवेयरनेस जो हमारे लोग So I जाते think कुणाल जी जो हमें समझ में आ रहा है कि lack of awareness, education, behavioral change, ये सब हमारे key movers होना चाहिए। और जो आप काम कर रहे हैं, that is excellent. Please continue doing that. And this is what I'm trying to say, that the other states, union territories, individuals who are working in this particular space do not have to go and reinvent the wheel. We can take up these best practices जो अभी हम सुन रहे हैं, that from Uttarakhand, Chandigarh, Uttar Pradesh, these individuals are actually leading it themselves, So which brings me now back to Mr. Sukhvinder Singh, that you have spoken about so many best practices. You are the one who's working on capacity building. You have talked about the mobile testing vans, and I also learned that when your introduction was being read out, that you've represented our country. So there's a lot we have to be proud of. There are a lot of best practices which people are looking towards us, but of course there's more scope also to understand internationally क्या best practices हैं और जो हम adopt कर सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि हमें बहुत जल्दी बच्चों को सिखाना चाहिए, the younger the better, because जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी आदतें थोड़ी सी बदलने के लिए टाइम लेती हैं। So as they say, catch them young and old habits die hard. So on that note, मिस्टर सुखविंदर सिंह, आपने बहुत ही अच्छे काम किए हैं, पर मैं ये जानना चाहती हूँ, ये तो बाद वाली स्टोरी है। जब आप एक कोई चीज अचीव कर लेते हो, so there are people there, applauding your, the work which you have done. But I'm sure you must be also facing a lot of challenges. It's not easy to reach there, and there are a lot of far more like daunting times जब आपको लगता है छोड़ दे भाई इसको. So I would like you to also pinpoint that, were there times in your life you said that, this is not going to work, but then your resilience kind of overtook that and आपने कहा नहीं, इसको तो मैं करके ही छोड़ूंगा. That's what I would want to hear from you. Over to you. Absolutely. What you said is absolutely correct, that before achieving these many, you can say, successes in various Milestones, yes. milestone in various areas, we face many challenges. Correct. हमने बहुत चैलेंज फेस किए। तो उससे डरना नहीं है, हमें ये नहीं डरना, बिल्कुल पहली बात तो डरना नहीं है। और मैं कुछ चैट में कुछ पढ़ रहा था, कुछ एडवर्स रिमार्क कई लोग भेज रहे हैं, बट द थिंग इज एब्सोल्युटली राइट, देयर इज अ डेडिकेशन and honesty is required to achieve anything in life. If you are a hard-working person, if you are dedicated, and if you are honest, I don't think that anything, मतलब जो भी आपने डिसाइड किया आप उसको अचीव नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। This is one thing is very much clear. Now, whatever we achieve today, so I'm just giving you one example, what type of problem we faced initially. So पहले क्या होता था कि I'm talking of 2016 की अगर मैं बात करूं, मतलब बिफोर 2016, बिफोर अप्रैल 2016 if I'm talking about, we used to aware public, जैसे हमारे को डिपार्टमेंट की तरफ से जाना पड़ता था, लोगों को अवेयर करने के लिए जाना पड़ता था, उनको फूड सेफ्टी के बारे में बताने के लिए जाना पड़ता था। तो वी यूज्ड टू गो एंड वी यूज्ड टू गैदर पीपल, उनको इकट्ठा करते थे। इकट्ठा करने के बाद उनको हम बताते थे कि भी ये चीज सेफ है, ये चीज गलत है, ये, but they don't even listen to us, or they raise so many queries कि बताइए ऐसे कैसे होगा, हम कैसे चेक करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा। So there was lot many questions from their side,
एंड फिर वो ये कहते थे कुछ नहीं होता है, ये तो कहने की बातें हैं, हम कहाँ कंप्लेंट करें, किसको बोलें, कोई नहीं सुनता हमारी बात। तो वो धीरे धीरे मतलब वी फेस लॉट मेनी क्रिटिसिज्म फ्रॉम द पब्लिक, इवन फ्रॉम द फूड बिजनेस ऑपरेटर्स आल्सो, कि वो आप क्यों हमें बता रहे हैं, आप हमें बताइए हम कैसे चीजें ठीक ठीक लें, किस तरीके से चीजें ठीक लें। तो इस सारी चीज को हमने स्टडी किया। इवन वी स्टडीड दी बेसिकली द व्यूज ऑफ द पब्लिक, जनरल पब्लिक आल्सो, बाय विजिटिंग द रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, कि उनके व्यूज क्या है, वो क्या चाहते हैं। So in 2016, an idea came to my mind. I discussed the whole thing with my Commissioner Food Safety at that time. It was Shri Anurag Agarwal ji was there. So I discussed with sir कि sir हम कोई ऐसा idea मेरे दिमाग में है कि I want to discuss with you so that we can develop such a system that we can give a live demonstrations to the general public, what is there in the food, how they can check it and how they can go for it, whether it is safe or not. तो सर ने मुझे बोला कि हाँ बताइए आपके मन में क्या है. So I requested, actually our office is in hospital. Our office is in hospital. So there are few ambulances lying over there, abandoned ambulances. So I requested my commissioner कि सर मुझे एक एम्बुलेंस आप दे दीजिए बड़ी वाली. तो बोला आप करोगे क्या इस एम्बुलेंस का? मैंने बोला सर हमने इतने हम भाषण देते हैं, इतने हम वर्कशॉप्स करते हैं और भाषण देके हम आ जाते हैं और लोगों का इंटरेस्ट वो रहता है कि हाँ भाई कोई आया था भाषण देके चला गया, वो भी सुनते हैं और वो भी उसको इग्नोर कर देते हैं, या फिर हमारे को इतनी आगे से क्रिटिसिज्म मिलता है कई चीजों के बारे में, इतने क्वेश्चन रेज होते हैं कि हम उनको प्रैक्टिकली वहां पर डिफाइन नहीं कर सकते. So then my commissioner, he allowed me and he handed over me one ambulance which was lying in one of our yard, abandoned lying over one of the yard. And I converted that ambulance into a mobile food testing lab that is first in the country in 2016. And I bought all the equipments, that even the milk testing equipment, chemicals from, I went to Ludhiana, I bought material from there, and I started that mobile food testing mobile lab. van. Yeah, mobile van in 2016. Wonderful. And I requested my commissioner that I need only 2 technicians in that van. And I started that, I started organizing camps, seminars, and I visited various areas of the city personally. It is the whole story and the whole documentary. I am having a complete documentary on it. So I visited various places. I started telling people that these types of adulterations are there in the market. I started giving them the live demonstrations over there. Right. You won't believe that. And what we did, we prepared a roster of that. That today our van will go to that place. So we make a roster, the whole monthly roster of the van, where it will stand and where it will demonstrate and where it will aware public about that. तो उससे क्या फर्क देखा आपने? उससे फर्क ये पड़ गया कि लोग तो वहां पर वेट करना शुरू कर दिया लोगों ने. अगर हमारी वैन 10 मिनट भी लेट हो जाती थी तो वेट कर लेते थे, वो कॉल्स आने शुरू हो जाते थे. This is commendable. अभी आपने एक बात बहुत अच्छी बोली थी पहले, जब व्हेन यू आर टॉकिंग टू चंदन पांडे जी, कि भाई गोलगप्पे वाले के पास गए तो अगर उसका काम गलत है तो आपने क्या किया, लोगों को क्या बताया कि लोगों को वहां लोग उसके पास ना जाएं. So what we did in this case also, in our case, when we started this mobile lab, we started testing milk. Initially हमारे पास milk का ही equipment में basic था उसके अंदर. Right. We started that in one of the area. हमने उसको जब start किया तो हमारे को क्या impact मिला वहां पर. एक सेक्टर 22 है, यहाँ पर एक पूरी कॉलोनी है जो कि एक ही मिल्क वेंडर से दूध लेती थी. वो बुलेट पे आता था और सारे जो कॉलोनी थी, कम से कम वहां पर 50-60 लोग थे, वो उसी से दूध लेते थे. We stationed our van in the sector 22 dispensary over there, and when people came to know that there is a mobile lab, so and the milk testing is available, facility is there, so they brought their milk over there, whatever they are getting, सब अपने अपने घर का मिल्क हमारे पास लेके आए. And when we tested that milk, we as we gave the result to the public that the fat content is very low into the. सभी बोले कि ये क्या है, हम इतना महंगा दूध लेने हैं. अच्छा, बाद में क्या पता लगा कि एक ही वेंडर था, वो सभी को दूध दे रहा था.
And you won't believe the whole 50 to 60 people, they stop taking fruit of that particular water. So हमारा को तो instead of doing any enforcement, we got a success that Yes, people yes. stop taking milk from that. This is what is your accomplishment, Mr. Singh. This is what I want to highlight also, that you begin from somewhere. First you understand that problem कहाँ पे है. Because ऐसे अगर कोई लेक्चर के लिए मुझे भी बुलाता है, I'm not interested in it, है ना. आप मुझे कहानी सुनाओ, मैं सुनने को तैयार हूँ. क्योंकि मैं चाह रही हूँ that हमारे जितने भी दिग्गजगण आज जुड़े हैं हमारे साथ, जितने भी श्रोता हमारे साथ सुन रहे हैं, उनके दिमाग में भी यही चल रहा है. Everybody knows that there is some amount of adulteration. मैं कुछ और एक ऐड करना चाहता हूँ कि उसके बाद then the Pawan Agarwal ji, he visited Chandigarh and with his team, and he inspected our mobile concept. Yes, I know it was scaled up. And he has given a note also that on the by seeing the successful launch of this, and then he initiated throughout the country, he initiated that project. Yes. So अब क्या है, अब जो मैं आपको सक्सेस स्टोरी एक और ये इसी के साथ कनेक्टेड बताना चाहता हूँ कि that now we started a food safety at your doorstep. So we started this initiative for the last so many years. We started the initiative in Chandigarh, that food safety at your doorstep. So under this, what we are doing, every month, twice in a month, we are approaching to the resident welfare associations, and we are approaching to the societies, and we are introducing the complete awareness program, the live testing of the adulterants. And this we are doing, ये जो हम काम कर रहे हैं, ये हम छुट्टी वाले दिन करते हैं, सैटरडे संडे के दिन, not on the regular, you can say, working day. My team is very good and they supported me very well. The whole technicians and my officers, they are very good and they are supporting me. They are even ready to come during the holidays. So Saturday Sunday हम सुबह मॉर्निंग 6 बजे से कौन से टेस्ट करते हैं? आपके सारे फूड स्टॉक्स को कवर कर रहे हैं या सिर्फ I want to show you. मैंने अभी इनसे ये मंगवा लिया था, ब्रोशर भी मंगवा लिए थे. So just tell us so that everybody can hear that. क्या ये हम देख नहीं पाएंगे सुखविंदर जी. मैं तो आपको वैसे ये बताइए कि besides milk, you focused on milk a lot. I know that. Milk is one thing, सबको चाहिए होता है. बच्चे पीते हैं तो हम सब बड़े फिक्रमंद होते हैं कि किस तरह का मिल्क आ रहा है हमारे घर में. What spices, condiments, pulses, what other foods? यही बता रहा हूँ. तो हम सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक कैंप लगाते हैं वहां पे सोसाइटीज में जी, and even outside the parks. तो RWA में जाते होंगे आप? RWA में जाते हैं और वहां पे पार्क्स में और उनकी सोसाइटी के अंदर हम कैंप्स लगाते हैं ट्वाइस इन ए मंथ जी. और वहां पर कंप्लीट सेटअप लगाते हैं, प्रॉपर टेस्टिंग का सेटअप लगाते हैं लोगों को. जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले गणेश जी के साथ बात करी, रुको के बारे में बात करी. वी डेमोन्स्ट्रेट ओवर देयर कि व्हाट इज रुको और ये क्या है और ये टेस्टिंग कैसे होती है. यू शुड अवॉइड. तो हमारे उसमें मिल्क हो गया, खोया हो गया, पनीर हो गया, देसी घी हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, जैगरी हो गई, देन पल्सेस के बारे में, रोजमर्रा के खाने हैं, कॉमन फूड, जितने भी आपके ग्रोसरी आइटम्स के बारे में हम वहां पर लाइव टेस्टिंग करके लोगों को दिखाते हैं. एंड यू वोंट बिलीव कि जब हम वहां पर कैंप लगाते हैं तो लोग भाग के अपने घरों से सामान लेके आते हैं कि भाई बहुत कम टाइम है, इनके साथ जाके टेस्टिंग करवा लें. And now what is happening in Chandigarh, that now we are getting lot many queries from various institutions, not only from the resident welfare association, now the corporates are also approaching to us कि आप हमारे यहाँ पर आके प्रॉपर एक कैंप लगाइए. So इससे क्या हुआ कि इससे एक अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई. Now we are getting lot many calls, lot many queries also. लोगों की complaints भी हमारे पास आनी शुरू हो गई. We introduced to them about the Food Safety Connect app also, जहां पर वो easily कोई भी अपनी complaint हमें दे सकते हैं. So we during these camps, not only we are providing the testing facilities, not only we are providing the awareness, we are also providing the whatever the latest developments are there on the from the FSSAI side, we are providing each and everything to the general public. So this is an excellent program we are performing in Chandigarh. Right. So my salute to you, Mr. Singh, and I think you are a game changer, no doubt about it. और आपका जो एक level of motivation है, in fact, you are a repeat offender of entrepreneurship, like so through that ambit of Eat Right India movement and Eat Sustainably, आप उसमें जाके देख रहे हैं कि हम और क्या value add कर सकते हैं, हम किस तरह से ग्राहक को जागरूक बना सकते हैं, and how can we accomplish this entire mission with a missionary zeal, as I've mentioned time and again, which we can see very well in UT like Chandigarh, which is happening. May I just add one word to that? So
in your next perhaps engagement, क्या आप एक, जैसे मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में ऑल्सो, ये सही खाने की थाली क्या होती है, ये ईट राइट प्लेट कैसी होती है? अगर आप देखें तो ये ऊपर एक लोगो भी लगा हुआ है, जो हमारे लोग आज जुड़े हैं हमसे तो उनको मालूम है कि ईट राइट प्लेट का कॉन्सेप्ट है, जो बहुत ब्यूटीफुली एफएसएसएआई ने बनाया हुआ है, एनआईएन ने बनाया हुआ है, और एक ईट लैंसेट भी है प्लेट, एक ईट लैंसेट कमीशन का है, जिसमें वो यही बताते हैं कि किस तरह से हमें सस्टेनेबली खाना चाहिए, कोई भी एक चीज को ओवर यूज नहीं करना चाहिए या अंडर यूज नहीं करना चाहिए। तो वी विल कम टू दैट लेटर ऑन। बट अगर ये ईट राइट प्लेट के बारे में भी हम, जैसे आप परिवारों से जुड़ रहे हैं, पेरेंट्स आर वांटिंग टू नो दैट व्हाट शुड देयर चाइल्ड ईट, राइट? What should I eat if I'm suffering from diabetes or if I'm overweight? So if you can bring this also on your table, I think that will be a remarkable thing to do. So let me go to now Mr. Chandan Pandey and figure out that जिस तरह से आपने बताया कि आपने बहुत ही बढ़िया काम in terms of capacity building किया हुआ है, और जो आपकी achievement है in these particular campaigns, जो आप ईट राइट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या आपके भी स्टेट में आई एम श्योर कुछ ऐसे आपके पास रोड़े आए होंगे, रोड ब्लॉक्स आए होंगे, या कुछ आपके चैलेंजेस आए होंगे जो आप शेयर करना चाहते हैं थोड़ा ब्रीफली? यस मैम, जो रोड ब्लॉक्स हैं वो इस बात का निश्चित तौर पर, कोई नई चीज़ है तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन होता है या लोग इतने एक्साइटेड नहीं होते हैं, या जितने स्टेक होल्डर्स हैं उतना तरह से नहीं समझ पा रहे होते हैं। लेकिन जैसा कि अभी सुखविंदर जी ने बातें बताई कि तो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको अगर पूरा रोड, पूरा रास्ता और पूरी मंजिल क्लियर कर दी जाए तो लोग धीरे धीरे मोटिवेटेड हो जाते हैं और चीज़ें पूरी हो जाती। मैं भी FSW में फूड सेफ्टी ऑन व्हील इज़ वंडरफुल टूल वी हैव। ईट राइट इंडिया का, ईट राइट मूवमेंट का सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड है वो फूड सेफ्टी ऑन व्हील है, जो हमारे लिए भी एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग करता है। उसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा कि अभी मेरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मैं अभी पोस्टेड हूँ, यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑन व्हील के साथ जो गेटेड कॉलोनीज हैं उनमें हम फूड सेफ्टी एश्योरेंस प्रोग्राम चलाते हैं कि कोई भी रेंडमली अपने चीज़ों को लेकर के आए और उसके ऊपर अपना ट्रस्ट बिल्डिंग करे, और धीरे धीरे करके पूरी कॉलोनी को हम ईट राइट कॉलोनी, एक ईट राइट कैंपस की तरह से ट्रीट करना चाह रहे हैं कि वो पूरी कॉलोनी ये डिक्लेयर कर ले अपने आप को, जैसे कि चंडीगढ़ में एक कॉलोनी थी जहाँ की एक ही वेंडर का आना होता था। अगर कई लोग आ रहे हैं तो लोग कम से कम अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकें साइंस बेस्ड एविडेंस के साथ। एक चीज़, दूसरा पार्ट ये है इसका कि एक यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं हॉबी डेवलपमेंट का, कि फूड सेफ्टी की जो टेस्टिंग है उसको जो साइंस के स्टूडेंट हैं, होम साइंस के बच्चियां हैं, तो दे शुड डेवलप देयर ओन हॉबीज बेस्ड ऑन दिस, एंड ऑल्सो कंबाइनिंग विथ ऑर्गोनोलेप्टिक टेस्ट। कि जैसे आपने पूछा था ना कि कांडवाल जी से कि किस तरह से पता चलेगा कि ये ऑयल ठीक नहीं है, यानी हमारी आंखों से देख के, छू के या चेक करके। तो अभी जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा है या मार्केट बढ़ रहा है तो हमारा जो ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्टिंग के प्रति रुचियां घट गई हैं। पहले के लोग बहुत इस मामले में होशियार होते थे जी। तो ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्टिंग, सेंसरी टेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, सेंसरी, जो सेंसरी इवेल्युएशन है जी। उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, और फूड सेफ्टी ऑन व्हील के साथ हॉबी डेवलप करने का एक प्रोग्राम चला रहे हैं। दिस इज बीइंग वेरी एंथुसियास्टिक। सारे जो यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं हमसे जुड़ते जा रहे हैं। कई बार हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया है, और ये हमारे पिंक बुक, येलो बुक और डार्क बुक को कंबाइन करते हुए जी जी, ये आपने बहुत सही बताया, बिकॉज बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या कुछ ऐसे टेस्ट हम भी कर सकते हैं, क्या कहीं से इनके पास इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो आपने बहुत अच्छा हाईलाइट किया कि डार्ट बुक है एक FSSAI की, विच इज डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन रैपिड टेस्टिंग।
तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी मटेरियल्स के बारे में अभी जो हमारे पैनलिस्ट बता रहे हैं, चाहे वो पिंक बुक है जो कि हाउसवाइफ्स के लिए, हाउस मेकर्स के लिए है, there's a yellow book which is meant for school children, there is a book for people who go to work, so it is safe and nutritious food at work, there is safe and nutritious work, book, safe and nutritious food at school, and also in canteens, cafeterias, hospitals, temples, etc. So all that resource material is very easily available on the www.FSSAI website. So please log on to that and you can free download to that. सर आप ये बताइए कि ये सब करने में आपको क्या एक चैलेंज आया है जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, और आपने उसको किस तरह से ओवरकम किया? मैम, एक ही चैलेंज है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको ठीक से जो मकसद है, जो पर्पस है, वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर हमारे ऑफिसर्स को भी वो बात अगर क्लियर नहीं होती है, मकान का नक्शा अगर क्लियर नहीं है, तो सारे मिस्त्री अलग अलग मकान बना दें। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो मकान का नक्शा है वो सबके सामने रखा जाए, और जो मोटिवेशनल प्रैक्टिसेस हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। तो मैं अपने ऑफिस में मंडे का दिन ट्रेनिंग का डे रखता हूँ फॉर ऑल दीज सच पर्पसेस, ईट राइट इनिशिएटिव, या जो टफ चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं, उनके लिए। और सब फिर इसके बाद सारे लोग, तो लीडरशिप डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, और जिसके साथ हम काम कर रहे हैं उनको हमें लीडर बनाना है। बिल्कुल। देन ईट राइट इनिशिएटिव विल बिकम द कैंपेन, और जितना अधिक से अधिक जन सहभागिता हो और लोग उसे अपना काम समझने लग जाए। जैसे यूनिवर्सिटी है तो वो अब हमारा काम नहीं रह गया है, दैट बिकम द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी इज आल्सो पब्लिशिंग उसका जो हिंदी वर्जन है पिंक बुक का, स्टार्ट का, वो यूनिवर्सिटी इज पब्लिशिंग दैट। जो कॉलोनी है वो जो वेलफेयर एसोसिएशन है रेजिडेंट का, वो लोग अपने खर्चे पर उसको पब्लिश कर रहे हैं। तो जब लोग जो पार्टिसिपेटरी मोड है, पार्टिसिपेटरी मोड इज की टू सक्सेस, ये मेरे एक्सपीरियंस में निकल करके आया। वेरी वेल सेड सर। तो जैसे आपने कहा कि जो आप लोकल यूनिवर्सिटीज या लेट्स से स्टेट रन यूनिवर्सिटीज या जो भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप बेसिकली कैपेसिटी तो बिल्ड कर ही रहे हैं पर उनके साथ एंगेजमेंट भी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंटरैक्टिव एक्टिविटीज आप कर रहे हैं ये और स्ट्रेंथन होंगी। और आपने बहुत सही कहा कि आज का बच्चा ही कल का रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है जो इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अगर इनके साथ हम कुछ और भी ऐसे जैसे हेल्थ क्लब से, हेल्थ एंड वेलनेस क्लब का एक कॉन्सेप्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने स्टार्ट किया था स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस में आपके पास ईट राइट कैंपस है, एंड उसके साथ साथ ही अगर हम इनको सस्टेनेबल चीजें बता सकें, जैसे आपने शुरू में बताया था कि नो फूड वेस्ट ऑन द कैंपस, सेज नो टू ट्रांस फैट्स, कि आप जो भी समोसा कचौड़ी खाएं मेक श्योर कि आपकी कैंटीन में कम से कम वो वनस्पति नहीं यूज हुआ हो रहा है। बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि वो क्या प्रैक्टिसेस हैं जो एक आम नागरिक कर सकता है। सो टॉकिंग अबाउट दैट आई वुड वांट टू सजेस्ट लेट्स बिगिन दिस डूइंग एट होम। हम सबको अपने घर पे पहले एक हेल्दी थाली होती है उसका सैंपल यूज करना शुरू करना चाहिए, जो बहुत ज्यादा सर डिफिकल्ट नहीं है, जो मैं मानती हूँ। हम सब दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खाते हुए आ रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी का जब मैं बात करूंगी तो उसके अंदर आप लोकली ग्रोन फूड को प्रेफर करिए, सीजनली जो चीजें खाना चाहिए। अभी मैंगो का सीजन है, भरपूर खाइए, राइट। मॉडरेशन इज द की। और इस समय मान लीजिए संतरे नहीं है तो संतरे खाने की कोशिश मत करिए। सिर्फ पैसा ही आपको हेल्थ नहीं ला सकता है। आप आई एम श्योर आप इंपोर्टेड ऑरेंजेस भी खा सकते हैं, बट जो जिस मौसम का है, एंड दिस इज द की फॉर सस्टेनेबिलिटी। अगर सर्दियों का वक्त है तो जो मिलेट उस समय आ रहा है आप वो खाएंगे तो वो आपके शरीर को ज्यादा लगेगा भी। और इसी प्रकार से फिर हम जो एक सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम जो डेवलपमेंट गोल्स हैं यूएन के, उनको भी हम अभी अचीव कर पाएंगे। क्लाइमेट एक्शन एसडीजी गोल नंबर 13 है, नो फूड वेस्ट। सो हमारे यहाँ इतने लोग दे गो टू बेड विदाउट फूड, so can we all stop wasting food? You have extra food, please go out there and donate. We've heard our panelists talking about that how good schemes they have launched and implemented, but we need more leaders like them. एक आदमी कहाँ तक ले जाएगा? हमारी आपको मालूम है देश की आबादी कितनी है, पर जैसे कुछ जमाने पहले जब हम लोग स्कूल में होते थे बोलते थे each one plant one tree or plant one.
So if each one feeds one, अगर हम रोज किसी को, आपको बहुत पैसे की जरूरत नहीं है, 2 रोटियां हैं आपके पास, 1 रोटी दे दीजिए, 1 केला आप खा रहे हैं, एक दूसरे को खिला दीजिए. If we start doing that, I'm sure that's going to change the game in the coming days. और उसके साथ साथ हमारा जो एक हिडन हंगर का प्रॉब्लम है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है हम, young and old, rich and poor. It's not that because you are wealthy you have all the micronutrients. और मैं ये भी चाहूंगी कि हम सबको मालूम होना चाहिए फोर्टिफिकेशन की क्या अहमियत है. अगर आप स्टेपल्स खा रहे हैं, जैसे मिस्टर सिंह आपने बात किया है मिड डे मील्स प्रोग्राम्स के अंदर, I know that there's a lot of taboo when it comes to fortification because lack of awareness है. अगर आपके पास आयरन, फोलिक एसिड एंड जिंक से फोर्टिफाइड राइस है तो लोगों को लगता है वो कलर जो है उसमें कुछ गड़बड़ी है. उसमें दाल में काला नहीं है, वो आपके लिए गुणवत्ता का सबूत है और वो आपको बहुत से ऐसे पदार्थ दे रहा है जो रोजमर्रा आपको नहीं मिल सकते हैं. दूध में अगर विटामिन ए और विटामिन डी है तो आपकी हड्डी स्ट्रांग होएगी, आपके बच्चे लंबे होंगे. और प्रोटीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एज अ बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए हर उम्र में. लेट मी कम टू मिस्टर खंडवाल नाउ एंड मैं ये चाहूंगी आपके प्रदेश के अंदर कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं और आपने उनको किस तरह से ओवरकम किया, सो दैट हम भी अगर उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं अपने स्टेट या यूनियन टेरिटरी में तो हम उससे एक लर्निंग ले सकते हैं. तो वो ठीक. देखिए मैम, एक जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है दैट इज द शॉर्टेज ऑफ द मैन पावर की, जो ह्यूमन रेगुलेटरी ऑफिशियल्स का जो शॉर्टेज है वो सभी जगह है, पूरे इंडिया के अंदर है. यानी यहाँ खासतौर से जो है ऐसे स्टेट जहाँ मैंने आपसे बताया कि वी आर कैटरिंग मोर देन 10 टाइम्स मोर पॉपुलेशन एज ए टूरिस्ट, एज ए पिलग्रिमेज इन अवर स्टेट. एंड ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज हमारे पास में मैन पावर की शॉर्टेज है देन वी कैन टेक हेल्प ऑफ द लाइन मिनिस्ट्रीज. तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे साथ में जो अदर जो लाइन मिनिस्ट्रीज है लाइक ICDS हो गया, MDM हो गया, आपका जो है PDS सिस्टम के थ्रू, तो जो आशा, आंगनवाड़ी और भोजन माताएं एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स है जिनके माध्यम से हम लोगों तक फोर्टिफाइड फूड के बारे में जानकारी पहुंचा सकते हैं. माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को कैसे ओवरकम करना है थ्रू डाइट, वो इन्फॉर्मेशन के लिए हम उनको जो है एज ए जो है ट्रेनर और एज ए वर्कफोर्स हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो हमने अपने स्टेट के अंदर जो नया इनिशिएटिव जो किया है कि वी आर इंटरेक्टिंग विद दीज ऑल लाइन मिनिस्ट्रीज. कि अभी रिसेंटली हमने जो है आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स और भोजन माताओं के साथ में एक सीरीज ऑफ फोर्टिफिकेशन के ऊपर एक डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी स्टार्ट करी है. और उसके साथ में जो है उनको न केवल इस चीज़ के बारे में, जो मिड डे मील के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, बहुत बड़ा नंबर है. अगर आप किसी भी स्टेट के अंदर अगर आप देखें आंगनवाड़ी वर्कर्स का नंबर, आशा वर्कर्स का नंबर देखें या मिड डे मील कोऑर्डिनेटर्स के नंबर्स देखें, ह्यूज नंबर. तो अगर हम उनको ट्रेन कर दें फूड सेफ्टी के बारे में, मैजिक बॉक्स के बारे में, हमने ये किया अपने स्टेट के अंदर कि हमने उनको जो है डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि कैसे वो मिड डे मील को जो है अपने एंड पे चेक कर सकते हैं बिना जो है, अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर अगर नहीं अवेलेबल है वहाँ पे. और खासतौर से उत्तराखंड के अंदर कई सारे ऐसे हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि ज्योग्राफिकल टेरेंस बड़े टफ हैं. तो ऐसी स्थिति में उनके यहाँ जो मिड डे मील प्रोक्योर कर रहे हैं वो मैजिक बॉक्स के माध्यम से उनके प्रिलिमिनरी टेस्टिंग कर लें. हमने FSW का इस्तेमाल किया है. सारे स्कूलों में हम जो है वैन जाती है, बच्चों को न केवल ट्रेन किया जाता है इस चीज़ के ऊपर कि कैसे वो फूड की टेस्टिंग करें, और उनको जो है हेल्दी फूड के ऊपर, फोर्टिफाइड के फूड के ऊपर, अदर चीज़ रूको के ऊपर, इन सब चीज़ों के बारे में सेंसिटाइज किया जाता है. तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम, यही हमारा चैलेंज था कि हमारे पास में मैन पावर की शॉर्टेज थी, लेकिन चैलेंजेस को कैसे हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम जो हमारे जो अदर जो है जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें जो है मैंने से बताया कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब की हेल्प की through a lot of things which were like not happening, schools ko, colleges ko open karna. So this has really become a mass movement. But now I am coming to something which is more challenging for all three of you, and this is an open-ended question. I want you to understand that हम सब ये जानते हैं कि इंडिया ऑलमोस्ट लीडर है NCDs में, और आप सब ने भी ये मेंशन किया है that overweight, obesity, we are the capital for diabetes. Very soon we will be getting the crown for the CVDs also. और हमारा पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय द डे. क्या हम इस ईट राइट इंडिया मूवमेंट के थ्रू क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं so that we leave no one behind? So it should begin first, as I said, charity begins at home. The homemaker, inevitably even today, is the lady of the house. तो मैं वो क्या सब कर सकती हूँ जिसमें I motivate everybody in the home ideally,
but most certainly housewives, going on to the students, whether they're in school or in colleges, so that we are making them understand the importance of adopting healthier food intake. और जैसे मैंने आपको बोला ये एक ईट राइट प्लेट है which is very beautifully designed. किस कॉन्सेप्ट से हम उसी चीज को सबको इस तरह से बता सकते हैं that this becomes now a reflex action. And a lot of people have spoken about convenience foods. So convenience foods were made for a particular time. You're traveling, you don't have time, so you go and purchase them. Nobody ever said that, stop preparing food at home. Stop eating food which is locally, regionally available. क्या अब हम अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को भूल जाएं? बिकॉज हमने देखा है जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो आज भी ज्यादा तंदुरुस्त हैं. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है सस्टेनेबिलिटी का. गो लोकल, राइट, रीजनल, सीजनल, ट्रेडिशनल, उसमें बहुत थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स हैं. सो एज दे से यू आर व्हाट यू ईट. एंड फ्रॉम देयर आई वुड वांट एनी वन ऑफ यू टू आंसर दिस कि आपको क्या लगता है आपके इस पर्टिकुलर रोल में हम किस तरह से एक ऐसी अप्रोच ला सकते हैं जिसको we leave nobody behind when it comes to eating healthy. So anybody can go and take that. Actually, I take a chance to speak on this. Please do. ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो इश्यूज चल रहे हैं, एनसीडीज के इशू चल रहे हैं, अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो बीमारियां आज की डेट में वो खाने से ही रिलेटेड है मोस्टली. बिल्कुल. और इसको एक्चुअली लाइफस्टाइल और खाना, जब तक तो हम तंदुरुस्त हैं, बढ़िया हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, तब तक ठीक है. जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा हमें दुख लगता है कि हमने ऐसा किया क्यों, हमने क्यों नहीं राइट टाइम पे सही डिसीजन लिया. ताकि तो अब इसके ऊपर अगर हम बात करें तो एक जैसे अभी आपने ईट राइट प्लेट की बात करी, इट्स अ वंडरफुली डिजाइंड बाय द FSSAI एंड इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम आफ्टर. अगर आप उस पिक्चर को ही देख लेंगे तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या हमारे लिए बेस्ट है. So if that eat right can be flashed, it will be good. You hold it up. If you see the upper part, there is a yellow color is there which predicts that it's related to the cereal and pulses. Then on the left side, if you see the green part, is related to the fruits and vegetable. In the center part, you see there is a tick. The tick is that what is the right diet for you. So the tick means that. And then again, there is a one leaf is there below the tick which says that there should be a sustainability we have to take care of. And on the right side, if you see, it is a blue color. It is related to the high fat and sugar products. That is they should be consumed very, you can say, बहुत कम मात्रा में उसको लेना चाहिए. Red So में this is the सबसे thing. कम. HFSS रेड में जिसमें आपको बिल्कुल सबसे कम लेना है. वो मीट एंड फिश पोल्ट्री के लिए. हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो इश्यूज हैं हमारे ये रिजॉल्व कब होंगे. पहली बात तो ये है कि इसमें हमें मिल के काम करना पड़ेगा. जैसे हमारे बाकी स्पीकर्स ने भी बोला है कि दिस इज नॉट इवन कंडवाल जी ने बात बोली है कि ये हमारी इट्स अ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज नॉट द ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट. यस, जो डिपार्टमेंट व्हाटएवर डिपार्टमेंट अभी एक नेटप्रोफेन चैप्टर है हमारा. If you see NetProfen chapter where we associate with other organization, other scientific organization, other colleges who are interested to aware public about the food safety and all that. So basic अगर हम crux देखें सारी बातों का तो ये है कि हमारे awareness और लाइव चीजें बता के ही लोगों को एजुकेट किया जा सकता है कि उनके लिए क्या बेस्ट है. नाउ यू आर टॉकिंग ऑफ दी घर की गृहिणी के बारे में आपने बात करी कि और ये ओबेसिटी एंड ओवरवेट वाला प्रॉब्लम जो है वो हर घर में है. हाँ, ओबेसिटी के बारे में भी बहुत. अब क्या है इश्यूज क्या है कि प्रोसेस फूड, जंक फूड इतना मार्केट में आ गया कि बच्चे देखिए, अब बच्चा घर पे रोता है, माँ उसको पकड़ा के बिस्कुट पकड़ा देती है, माँ उसको चिप्स पकड़ा देती है कि हाँ भाई 10 रुपए का चिप्स लिया और पकड़ा दिया. बट दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि उसको कोई हेल्दी चीज दी जाए. तो ओबेसिटी का इतना मेजर इशू आ गया है कि नाउ द एवरीबडी इज कंसर्न. इवन अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो इज दैट वी हैव टू वर्क ऑन द टू कर्ब द ओबेसिटी.
सो ये बहुत जरूरी है। हम एक दो चीजें गिन के बताते हैं, फॉर इंस्टेंस सारे फूड ग्रुप्स को एक एक करके ले लेते हैं सर, सो दैट इन लोगों को थोड़ा सा हम क्लियरली बता सकें। जैसे हाँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमें क्या चीज कट करना चाहिए, मिनिमम क्या चीज जैसे लेना हमें चाहिए। अब ऑयल है, ऑयल देखिए सबसे मेजर जो इशू है, सबसे बड़ा ऑयल का ही इशू बिल्कुल है। सही, तो वी फैक्ट्स आर टॉकिंग इन द मॉर्निंग आल्सो, हमने जो अपने इनिशियल स्टेज पे हमने बात करी रिगार्डिंग रूको की हम बात कर रहे हैं, यूज्ड ऑयल की हम जो बात कर रहे हैं, जो रिपीटेडली यूज कर रहे हैं, तो इट इज सो डेंजरस। तो अगर वो हमने जैसे उसके बारे में बात करी, खंडवाल जी ने बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट अपने वहां पे शुरू किया हुआ है। इवन वी स्टार्टेड दिस, वी हैव कनेक्टेड मोर देन 100 फूड बिजनेस ऑपरेटर विद दी बायोडीजल मैन्युफैक्चरर, जो कि उनको बायोडीजल मैन्युफैक्चरर को मोर देन 100 फूड बिजनेस ऑपरेटर अपना ऑयल देते हैं टू कन्वर्ट इट टू बायोडीजल। सो व्हाट आई मीन टू से, ऑयल इज अ मेन कंसर्न, मेजर इशू, क्योंकि आप देखिए अगर आप ऑयल शुड बी लेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ हाउसवाइफ, राइट? ऑयल जब वो शुड अपना बी लेस। खाना प्लान कर रही है तो वो क्या चीजें दिमाग में रखे, मोटी मोटी, कम से कम तेल और ऑयल। चंद्रा जी तेल को आप हम कुछ ऐड करना रखें, चाहते हैं, क्या चीज कम होना चाहिए, क्या चीज ज्यादा होना चाहिए? शुगर को रिड्यूस मैडम किया इसमें जाए, देखिए नमक को रिड्यूस किया जाए, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। फैट, शुगर एंड सॉल्ट, राइट? Yeah. लेट्स मूव टू चंद्रा जी, आप बताइए क्या चीज ज्यादा होना चाहिए, मैडम इसमें एक चीज बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वी हैव टू इंक्लूड द सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वेरी गुड। मींस ना हमारी आपकी आधी थाली बनानी चाहिए। अगर आप जी। पूरी थाली को एक गोले में मानते हैं, जिसे ईट राइट प्लेट भी बता रहा है, उसमें आप देखिए ग्रीन बैंड सबसे बड़ा है। तो वो जी ग्रीन तो बैंड क्या है, जैसे सिंह साहब ने बताया, सस्टेनेबिलिटी का सबसे बढ़िया उदाहरण है, पर उससे जी ज्यादा आपकी सेहत के लिए वो बहुत बढ़िया है। एंड अगर एक आप और अपनी आधी एक प्लेट को हरी सब्जी, जो कि सीजनल होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, और फ्रूट्स जो होंगे, तो वो आपकी आधी प्लेट भर जाए। जी और चल। मैं एक पॉइंट और रेज करना चाहूंगा इसमें कि लाइक आप बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि मिलेट्स को जो है केवल जो है फेस्टिव टाइम पे जो व्रत होते हैं जी उसी टाइम पे हम लोग उसे यूज करते हैं। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि वो केवल जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ना लिमिटेड होकर के रहे, हम उसे रेगुलर अपने डाइट में शामिल करें। देयर आर सो मेनी मिथ्स रिलेटेड विद द बिल्कुल बिल्कुल मिलेट्स। सही खंडवाल जी, और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। हमारी 5 उंगलियां होती हैं, तो आपको ये याद रखना है कि हम 5 प्रकार का ग्रेन लें, हमेशा एक ही ग्रेन नहीं खाएं। ज्यादातर हम रोटी चावल। सो प्लीज मेक श्योर दैट एटलीस्ट वन टाइम इन अ डे आप कोई और तरीके का अनाज खाएं। और उस अनाज खाने से क्या बेनिफिट्स हैं, बहुत ज्यादा आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे कंट्री के अंदर हिडन हंगर है, चाहे वो अमीर आदमी है या गरीब आदमी है, उसके पास विटामिन और मिनरल्स की कमी है। तो ये आपने जो बोला। और दूसरा, गट हेल्थ एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारी मैडम बीमारियां आपकी गट की हेल्थ की वजह से होती हैं। जी एक और बताइए। इम्पोर्टेंट चीज है कि लाइक मतलब एज यू नो कि जो है आज का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि वी आर लिमिटेड टू दैट अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। Yeah. We can not make it as a habit to consume every day. जी We have to minimize it. एंड अगर आप उसको पर सपोज आपको देखिए हेल्दी प्लेट में उसमें गुंजाइश दी हुई है। दैट्स अ हाँ फूड व्हिच वी हैव ऑलवेज हैड। जब आप चाय खाते पीते हैं तब आप थोड़ा बिस्किट और चिवड़ा खा सकते हैं, पर जी आप अपने नीड को उससे ना रिप्लेस करें। एंड प्लीज रिमेंबर दैट कन्वीनियंस फूड्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। आपको यस यस मालूम होना चाहिए दैट आपको कौन सा ब्रेड लेना है। होल ग्रेन ब्रेड इज बेटर देन द ओनली मैदा ब्रेड, राइट? इफ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम, राइट? और जब हम ईट राइट थाली की बात कर रहे हैं तो ईट राइट थाली को बहुत बड़े लेवल पे इसको जो है एडवर्टाइज करने की जरूरत है। इसको जो है हर सिर्फ सबसे स्कूल पहले तक तो हमें उसको लेना पड़ेगा अपनी जिंदगी के अंदर, एंड ऑटोमेटिकली जी वो जो एक बज़वर्ड है वो निकलेगा। आई थिंक तो सरकार बहुत कुछ कर रही है बताने के लिए, पर वी प्रॉब्लम हैव वो है कि आप स्टार्टेड सबने कहा कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम खुद ही अपने जी घर में नहीं उसको यूज कर पा रहे हैं। in our state we have started to promote this eat right थाली at स्कूल में जो है जहाँ मिड डे मील है वहां पे हम बहुत बढ़िया। ईट राइट थोलो का थाली का जो इसका जो है टेम्पलेट्स या उसके पोस्टर्स लगाए जाएं और बच्चों को उसको एजुकेट किया जाए कि उनकी थाली में जो है क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जी एंड जो ट्रेडिशनल वेरी गुड। थाली जो है एक और चीज that बताइए जो उसमें हम ज्यादा मात्रा में खाएं, और इस वक्त हम जानते हैं कि हम सब उसमें डेफिशिएंट हैं। इंडियंस पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर मैक्रो न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट है। कौन बताना चाहेगा, और उसके लिए क्या उदाहरण देना चाहेंगे आप? उसी ईट राइट में हमने ग्रेन्स कवर कर लिया है, हमने
बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कवर कर लिया आधा। अब प्रोटीन एक yellow वाला हिस्सा जो प्रोटीन वाला जो पार्ट है, प्रोटीन जो है तो लाइक कौन सा प्रोटीन आप बताना चाहेंगे सर? वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन आवर ईटिंग बिल्कुल, हैबिट्स। हम यहाँ कुछ नहीं बोल रहे हैं वेज या नॉन वेज, हम बोल रहे हैं प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन मॉडरेशन में होना चाहिए, और जो आप दालों से और लेग्यूम से, जैसे आप चना है, राजमा है, और सारी आपकी अरहर की दाल है, मसूर की दाल है, इनका जब आप कॉम्बिनेशन रोज 2 वक्त खाएंगे तो वो आपको प्रोटीन के साथ साथ बहुत अच्छी चीजें, जैसे मैंने बोला घनिष्ठ पदार्थ, विटामिन एंड मिनरल्स और फाइबर देंगे, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चंद्रा जी आप बताइए और क्या ऐसी चीज है जो हम खा सकते हैं? देखिए मैडम, जो जैसे प्रोटीन, यस yes, प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग आजकल सारे जो है प्रोटीन डेफिशिएंट हो गए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में सर ने बहुत सही बताया, मिलेट्स होना चाहिए। You have to have lot of green leafy vegetables, seasonal vegetables and fruits. और एक और चीज हम मिस कर रहे हैं जब प्रोटीन्स की बात करते हैं, जो कि इंडियंस बहुत अच्छे से खाते थे, जो नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं। और मैं चिया सीड्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तिल की बात कर रही हूँ, मैं मूंगफली की बात कर रही हूँ, मैं बहुत आम तौर से जो मिलने वाले सीड्स हैं, जो हम रोज उसमें अपने घरों में चटनी में, लड्डू में डाल के खाते थे, राजगीरा हो गया, ये सारे जो सीड्स हैं, दे आर हाईली न्यूट्रिशियस टू अस। सब्जा सीड बहुत सस्ता उदाहरण है as compared to chia seeds, and it is going to give you that soluble fiber, as I was talking about, that gut health has become significant. आप जो खा रहे हैं, क्या आपकी बॉडी उसको पकड़ रही है, क्या वो assimilate कर रही है, and that's a $1 million question. And finally, Sukhvinder Singh ji, आप बताइए और क्या चीज हमने बहुत important to add one more thing, that not only yes, protein is required, it is there, but the thing is the anemia is also a major very good concern. So उसका क्या आप Basically what I feel, so that as we are talking of this junk food and all that, and ultra processed food, so we should go for a locally produced food जो भी हमारा है, क्योंकि that is also equally beneficial for us. Fortified आयरन डेफिशिएंसी सब में है, fortified. So basically, बताएंगे उसके? yes, so basically what we are doing, we are even I think every state is doing that. So we are promoting the fortification of the food. So अभी अगर मैं एक और बात करूं, अगर जैसे हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करी, तो उसमें एक और हमने ऐड किया है कि now we even that twice in a month we are approaching the resident welfare associations, and the second is on daily basis we have a roster in our department that our mobile food testing lab daily visit one Ayushman Bharat Arogya Center, and whosoever are there, those patients are coming over there, their attendants are coming over there, so we are educating them also. There is a one complete session for 1 hour every day in one in each Ayushman center, Arogya Center, where we treat people, where we aware people about the safe food practices, healthy eating habits, food fortification, then millets, the usefulness of millets in their basic diet. So this is what is required. Basically, actually, we have to approach to directly, instead of giving on in a paper and all these things, rather we should directly arrange such type of camps and awareness program at their doorstep, so that people can interact with you, they come with you, they raise their queries, and we have to give them a good solution to that. Only then I think if we अगर हम सब मिलके इस प्रोजेक्ट पे काम करें, I think we will improve the things in the country. Definitely we will improve the things. Absolutely, I think बिल्कुल हम सबसे सहमत हैं that, और जब आपके घर घर जाके इतना बड़ा मिशन कर रहे हैं और आप स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो क्या हम कुछ मेले भी लगा सकते हैं, once in a way? one more thing, सब अपना खाना लाके वहाँ पे दिखाएं। हो सकता है मेरे घर में कोई ऐसा ट्रेडिशनल चीज बनती है जो आपके घर में नहीं बनती है। one more thing I missed one more thing, that you said that about the गृहिणियों के बारे में आपने बात करी, जो घर पे लेडीज उनके बारे में बात करी. So this is one of the best option, and what we observed from our last Eat Right मेलास. So हमने Eat Right मेलास लगाए अपने कैंपस, यहाँ पे अपने कैंपस के अंदर Eat Right मेला लगाए, जहाँ पे हमने सिर्फ मिलेट से रिलेटेड और ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड ही स्टॉल्स लगाए. यहाँ पे हमारे 40 स्टॉल्स. In the interest of the time, Mr. Singh, I'll have to stop you over here. Mr. Chandra, last word from you. एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है थाली के साथ साथ, वो क्या चीज है आप बताना चाहेंगे इसके बारे में हमारे श्रोताओं को? क्या चीज एक और है इस प्लेट के अंदर? Can I request Purnima to please put that plate up so that everybody can visualize it?
उसमें एक नीली जगह कुछ लिखा हुआ है, वो क्या है और वो क्यों हमें चाहिए? थैंक यू सो मच। खाने के साथ साथ एक और पदार्थ है जो सब लोग भूल जाते हैं, वो क्या है? It's water. जी, That is a water. पानी। एब्सोल्युटली। पानी। और मैंने देखा है पानी के बारे में बहुत सारी यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो रही है चैट ग्रुप के अंदर। पानी, कैसा पानी? पोर्टेबल वाटर। हाँ. So please make sure that you drink a lot of water. Khanwal ji, last word from you. मैम सबसे इम्पोर्टेंट है, लाइक यू हैव वेल सेड, कि जो है So one sentence only. yeah, eating for safe food is the prime concern to minimize future बिल्कुल, challenges बिल्कुल। related to the food. जी, And for that we have to be sensitized, be smart. We are using smartphone, we are becoming so many things which are smartly operated. yes. In You have terms to of the become food smart safety, we eaters have to now. be That's smart what. smart eaters जो आपने also. बोला सोशल मीडिया पे सब रॉन्ग चीजें चल रही हैं, प्लीज स्टार्ट द राइट थिंग, बिकॉज जो नेक्स्ट जनरेशन है, दिस जनरेशन Z as we call it, वो सबसे पहले देखती है क्या सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है. So can we trend Indian traditional thali with a lot of panache and take pride in that, and put those small katoris, because it's just not the thali, and eat what you like more, but go in moderation. आजकल एक स्लो फूड का कॉन्सेप्ट है, आप सब जानते होंगे, सीजनल, local, organic, right? And they have to be for your health and wellness. I So just want to add one thing, ma'am. It's very relevant, related with our young generation, as जी, we have changed our cooking methods, like जी, grilling, frying, roasting. These are all the new methods, but slow cooking is the one method which is very, I think, in very terms of good, to retaining the nutrition, बिल्कुल, it's very, very important. right, So if suppose Uh, young generation always prefer to eat grilled food, grilled sandwich, grilled जी, something else, जी, so they can take once in a month, but for taking in a regular way, there is a study which indicate that consuming these type of food can lead to that advanced glycation and products and बिल्कुल, so AGE, it will increase the AGE, that is very, very harmful. It बिल्कुल सही आपने create बताया inflammation in the that body. हम किस तरह से फूड को प्रोसेस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले जमाने में बहुत स्लो कुकिंग की जाती थी, कंट्रोल्ड फैशन में की जाती थी. ऑल दोस प्रैक्टिसेस आर इंपॉर्टेंट, but given the changing demographics also, we have to understand that new technologies can be also used, but with a lot of care, right? So वो भी सेफ है जो आप यूज कर रहे हैं, पर वही चीज आप रोज रोज बारबेक्यू फूड खाएं, जला के खाना खाएं, वो आपके लिए सेफ नहीं है. And Body food, automatic food, और मैम food एक जो चीज है और जो है online platform कि से जो आ रहा है मैम, So like we have just now another so minute, then I'd like to take some questions and then wrap the session, please. I just जी want to बताइए. add at the last that most of our young population is depending upon the online food platforms. They are ordering the food through the online. So while choosing the options, जी, we have to be very, very selective. बिल्कुल. So That cloud is the one. kitchens हैं जो बहुत हेल्दी खाना भी दे रहे हैं. ये आपको we have to actually sensitize the youth, and यही मेरा इसमें एक बहुत ही important baseline question था सबसे, कि आप लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, पर क्या सोल्यूशन है कि आप उन यंगस्टर्स को, उन यंग मदर्स को मोटिवेट करें कि उनके बच्चों को वो राइट ईटिंग प्रैक्टिसेस का एक बहुत बड़ा सारा, जिसे बोलते हैं ना, विरासत में उनको दे दें. जो हमने सीखा था अपने पेरेंट्स से, वो हम अप्लाई कर रहे हैं. मैम So one last thing I want to add over here in the interest of time, that lifestyle change. आप सब कुछ खा लीजिए, बच्चे को सोने का निवाला खिला दीजिए, लेकिन if you do not move, exercise, remain active, nothing will make sense. So with that, over to you, Purnima. Before I give the closing comments, do we have any questions to quickly take up, please? Wrap up, I think Chandan Pandey was wanting to say something, but Pandey जी. sir, very briefly, because we have बस paucity of एक time. पॉइंट जोड़ना था. एवरीथिंग इज डन. जी. एक हमारी जो अच्छी थाली है दैट शुड बी Promoted. यस प्रमोटेड टू थ्रू आउट द नेशन, कि वो Sir, हर I'm घर में with you. हमें Let's do मिल it सके. today. और एक चीज जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज में, जो जी. हमारी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की, नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल. की, उसमें बिल गेट्स ने अभी साइन किया है कि ही इज गोइंग टू, जो हमारे दुनिया का जो सस्टेनेबल दुनिया है उसके लिए जो नया सोल्यूशन है, वो हमारी एंशियंट टेक्नोलॉजी है, जो भारत में 4000 5000 साल से लोग कुकिंग कर रहे थे, खाना सीख रहे थे, एक दूसरे को शेयर कर रहे थे. तो वी आर वेरी रिच. उन सब चीज़ों को हमें सीख करके और फिर से
ईट राइट मूवमेंट में लाने की जरूरत है. दिस इज ऑल माय लास्ट नोट. सो एक इंडियन नॉलेज सिस्टम है जिसके अब हम बात कर रहे हैं, उसी के अंदर ये सूवीट टेक्निक है जो जापानीज ने एक्चुअली पेटेंट करा ली है, और जो हमारी होती थी जिसमें रात भर हांडी को चला के और कढ़ी बनाई जाती थी, you know, so many vegetables were cooked over there and then it was consumed. So where the temperature would never be over 60 to 70 degrees Celsius. So I think time has come that we tap into all those particular technologies as well. Do we have a question, Purnima? Otherwise I wrap this up. We can take up one question. So someone is asking, how will fortified food address the problem of differential dietary requirements for every child? कौन आंसर करना चाहेगा? किसी के लिए स्पेसिफिक है या? No, ma'am, it's general. So anybody please amongst the panelists? मैं करूँ नहीं तो आंसर. Now you have seen that our diet is, most of the products are, they are deficient in nutrition, and through fortified food, like FSSAI has selected the 5 staple food which are very relevant. Most of the consumers are consuming these 5 items. So adding them with iron, with calcium, with other with important vitamins, that will help for our diet. Even we can improve our diet, and through consuming through the fortified food, we can minimize the need of the micronutrients in our body. One more thing I would like to add here. Hello, am I audible? जी, we can hear. So if you see that there is a midday meal program throughout the country, and up to I think class 8th, the midday meal is being provided to the students over there. And और वही हमारा जो बंच है वो बहुत बल्क में है जो बच्चे हैं. बेस. अभी अगर हम जैसे हम प्लेट्स की बात कर रहे हैं, ईट राइट प्लेट की बात करें, देयर आर आल्सो इशू ऑफ अफोर्डेबिलिटी. कई घरों में ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट मच एवरीथिंग, मतलब फ्रूट भी उसमें आ जाए, सब कुछ उसमें आ जाए. सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन. फोर्टिफिकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन वेयर दे कैन गेट द this vitamin and minerals. So that's why this is very important. If you see, there are a lot of masses are there up to 8th class, a lot many students are there, और उन्हीं में यही सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं मिनरल्स और विटामिन्स के. सो आई थिंक दैट्स व्हाई फोर्टिफिकेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट्स इनटू दिस. हाँ, ये बहुत ही एक सिंपल तरीका है जहां हम बेसिकली पॉपुलेशन बेस को कवर कर सकते हैं. रोज छोटी छोटी मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसलिए वर्ड रखा गया है, छोटी छोटी मात्रा में आप रोज लेंगे तो वो आपका जो है डेफिशिएंट जोन में आप नहीं जाएंगे. एंड आई वुड एनकरेज एवरीबॉडी टू हैव दीस फोर्टिफाइड. इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो हमारे फोर्टिफाइड फूड है वो किसी भी तरीके से, जो हमारा ईट राइट स्टेशन प्रोग्राम है, या जो अभी उत्तराखंड में कांडवाल जी ने बताया पिलग्रिमेज के साथ कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि जब हम यात्राओं में होते हैं, अपनी जगह से काफ़ी दूर होते हैं, तो हमारे पास जो न्यूट्रिशन है, वैल्यू है, वो बहुत तेज़ी से डाउन हो जाता है जी. तो ऐसे में जो फोर्टिफाइड फूड अगर हमको रेलवे स्टेशन पर या दूसरी जगह पर या मार्केट में नहीं मिलता है, जब हम बाहर खा रहे होते हैं, यात्राएं कर रहे होते हैं, तो अगर हमें इस ईट राइट इनिशिएटिव के साथ जो जर्नी लेड प्रोग्राम्स हैं उनके साथ इसको कंबाइन करते हैं, तो दैट विल बी अ मेजर ह्यूज सक्सेस व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर एंड गेटिंग फोर्टिफाइड एंड बैलेंस्ड डाइट. जी बिल्कुल सही. Purnima, any other question? I think we can wrap up because. All right. So thank you so much. I think all our 3 very eminent panelists, हम सबने सुना जिस तरह से चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के अंदर ये बहुत ही सुंदरता से एक बहुत ही नीश तरीके से थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने बहुत ही बढ़िया बेस्ट प्रैक्टिसेस एस्टैब्लिश करी हैं. So we have lot of learnings today, and I must thank each one of you for taking your time. But before we close, I want to give something called as food for the thought. And what is it? There are few things which we need to learn from the others. So there is something called as international best practices. जैसे इस वक्त अभी चंद्रा जी ने बताया that fortification किस तरह से हमको benefit करता है, और ये हमने learning जो है दूसरी countries से ली है. That fortification उनके staples का from time immemorial हो रहा है, more than 50 साल से.
and we find that उनकी population जो है micronutrient deficient नहीं है, unlike the Southeast Asian countries जहाँ पे micronutrient deficiencies बहुत ज़्यादा हैं। जब हम eat right, eat healthy and eat sustainability की बात करते हैं, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक नेशन का एग्जाम्पल आता है और वो है जापान। आप सब जानते हैं कि जापान इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिलिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। उनके पास बहुत मारामारी हुई है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो पूरे खत्म हो चुके थे, एंड अगेन नाउ दे हैव बिकम सो बिग, ऑल ऑफ अस नो दैट। तो जब खाने की बात आती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दे वर एज बैड एज प्रोबेबली वी वर वंस अपॉन अ टाइम, वी आर मच बेटर देन देम। तो उन्होंने क्या किया, ये जो एक ईट राइट इंडिया हमने मूवमेंट चालू किया है, उन्होंने किस तरह से अपने देशवासियों को प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया दैट दे स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। उनका बहुत बेसिक फिलॉसफी है और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उनका जो प्रोग्राम है आप सब गूगल करके देख सकते हैं, उसको बोलते हैं शोकू इको। ये एक वे ऑफ लाइफ है। इस वक्त जब मैं इसकी बात कर रही हूँ तो जापानीज जो हैं वो 100 साल से ज्यादा रहते हैं जिंदा और हेल्दी रहते हैं। ऐसे नहीं कि हम 80 साल के उनकी क्रंचेस पे चलते हैं, वो 100 साल का बंदा भी मेट्रो पकड़ के जाता है और बहुत स्प्राइटी रहते हैं, बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं। तो क्या है उनका राज, और वो राज ये है, उन्होंने अपने स्कूल के अंदर ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बनाया। और वो कैसे किया, मैंने खुद विजिट किया है जापान और अपनी आंखों से देखा है। फर्स्ट सेकंड क्लास से ही वो बच्चों को फूड के साथ इन्वॉल्व करते हैं। हमारा बिगेस्ट डिस्कनेक्ट ये है कि हमारे बच्चे को ये नहीं मालूम ये आटा कहाँ से आता है, गेहूं कैसा दिखता है, बाजरा कैसा दिखता है, मक्का कैसा दिखता है। उसको रोटी से मतलब है, पराठे से मतलब है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को जब फूड प्रिपेयर होता है और सर्व होता है, उनको वहां से उसके साथ बॉन्डिंग कनेक्शन स्टार्ट किया। जब हमारे यहाँ मिड डे मील सर्व करते हैं तो एक बड़ी टीचर आती है और वो सबको थाली परोस देती है। वहां उस बच्चे के पास भगोने आते हैं जो सबको वो सर्व करता है। द फर्स्ट लेसन, उतना ही डालो जितना आप फिनिश कर सकते हो। You will get the second helping when you have a feeling of or desire for more food. उसके बाद आप अपना बर्तन खुद धोते हो और संगवा के रखते हो। और ये एक साइक्लिक उनके यहाँ मेन्यू चलता है और साइक्लिक इस तरह से एक्टिविटी चलती है। उसके बाद वो ये फूड के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आज मैंने नॉर्थ ईस्ट का रेड कलर का राइस खाया, तो उसके बारे में सारी डिस्कशंस होंगी कि कहाँ ग्रो होता है, किस तरह की सॉइल होती है, तो ज्योग्राफी का लेसन आ जाएगा। और उसके साथ साथ उसको बताते हैं कि उसमें क्या घनिष्ठ पदार्थ हैं, what are those micronutrients which you have got today, how does it help you in that gut brain axis, in your cognitive development, in your concentration. उससे क्या होता है, बच्चे को एक अटैचमेंट होता है फूड के साथ। they are also taught to grow their own food in little different boxes, microgreens, and that is how this bond begins. And most importantly, it's a happy environment when you eat the food. Sitting together and eating is one of the primary reasons why we have lost the benefits of eating food. पुराने जमाने में घर में एक बार सब लोग इकट्ठा बैठ के सही ढंग से खाना खाते थे। टेलीविजन को बिना खोले हुए पहले हाथ धोना है, उसके बाद आपको खाना खाना है। खाने का टाइम जो होता है खुशहाली का टाइम होना चाहिए। It should be a happy movement for you, so that you remember those things all your life, that how that food was made, prepared, served, and how you enjoyed it. Small tales were discussed. Our grannies told us that what is the importance of having Rajgira, laddu, vis-a-vis a til ka laddu jo Sankrant mein khate hain. So all that what I'm trying to say is that we have to just go back and dig out these tales and make this as a very, very happy meal time. So if that can be done, and we talk about food a little more often to the children than to just shuffle back whatever is easily available in the market and give it to them, eat it however. Yes, we all are short of time. Times have changed. Demographic dividends are there that you have nuclear families, but तो भी हम अपने एक दूसरे के लिए समय निकाल सकते हैं. This will do a lot of benefit even for our mental health. So on that note, I'm more than obliged to our great panelists for bringing in such diverse, rich discussions. They were so insightful. And before I leave, I need to thank all the audience who have so diligently taken out time on a weekend to be with us. We will be more than happy to get your inputs, insights on more what you want to listen from us. And thank you so much, FSSAI, Mr. Sahil Khan, for giving me this opportunity.
Purnima for being the co-host with me. And with that, it's a good morning and a good day to all of you. Thank you. Thank you. Thank you. And thank you, Purni.